Hello, good afternoon, everyone. So once again, I welcome all of you in today's current affairs class. Okay. So today, on 18th of December, I have again got some very good articles for you people from the Hindu newspaper. Okay. So 18th of December, most of the discussions in the newspaper are surrounding around the recently introduced bill, which proposes to repeal the Manrega Act of 2005. Okay. Then also. These are the articles which I am going to discuss today. One is that regarding privatization of nuclear energy sector, one bill has been passed in the parliament that will be discussed. Okay, Aravalli ranges and how is it important to protect these ranges, Aravalli mountain ranges. Okay, very important article. Rajya Sabha passes the bill for 100% FDI in insurance sector. Okay, very important change for the worse. This is related to the Manrega. Okay, that if you are changing the Manrega Act of 2005, what you are bringing new is not actually new, is not anything big. That's how criticism has been revolving around that. Okay, then microfinance loans and how the loans are recovering in the current period, in the current times. Okay, so these are the articles which I will be discussing very thoroughly. Okay, so first of all, the first article which says that in nuclear energy, we have brought privatization of nuclear energy, for that matter a bill that was already I told you yesterday, that is Shanti, the Shanti bill. Okay, Shanti bill. What is the Shanti bill? It is sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India. Sustainable harnessing and advancement in nuclear energy for transforming India. This bill allows private sector to participate in nuclear energy sector, Okay, now opposition is consistently opposing this move. They are saying that this bill has been brought to benefit certain corporates like conglomerate house, which is owned by Adani Group. Okay, now also center is saying that by bringing private companies in the nuclear power sector and allowing private sector to run the nuclear plants, you are putting huge risk on the, because a nuclear energy sector, highly regulated sector. Okay, any accident causes mass destruction. Get the point? So also the responsibility of managing the nuclear plant is on the operator of the facility. Okay. Moreover, it also limits the operator responsibility. That is the most controversial clause. Most controversial clause is that you are limiting the responsibility of the liability of the operator to 3,000 crores. Why are you capping it? If the loss or damage is more than this, who will be responsible? So you have put a black cap on the liability of plant operators at 3,000 crores. How can this cap be put on the liability if there is any damage, in case there is any damage? Okay. Moreover, there is also discussion that in 2008, Bharatiya Janata Party brought no confidence motion against the UPA 2 led by Prime Minister Manmohan Singh at that point of time. Sorry, UPA 1 led by Prime Minister Manmohan Singh at that point of time. Only because various sanctions were imposed. Various sanctions were imposed by nuclear supplier group on India. Okay, sanctions were related to unlimited liability. Means all the operators must have unlimited liability. Okay, unlimited liability. So how can you fix a limited liability on the operators of nuclear operators or these nuclear plants? Okay, nuclear power plants. Get the point? So now here one term which is important is nuclear supplier group. Because whenever you are understanding current affairs, you must understand the basics also. So what is this nuclear supplier group? You know, in nuclear sector, there are various organizations or various groups across the globe which are basically dealing which are giving guidelines or which are dealing with the nuclear sector, and their majority of the objective is that nuclear non-proliferation, means nuclear weapons should not be proliferated, and those who are already having nuclear weapons, they should be used only for the betterment of mankind, because such a dangerous thing. Okay, so nuclear supplier group is one among the 4 regimes. There are actually 4 regimes for nuclear regulation across the globe. Like Australia group is one, Wassenaar agreement is also there. So then MTCR is also there.
So, Nuclear Supplier Group was basically, first of all, found in 1974. 1974. See, in 1974, India conducted nuclear tests. In 1974, India conducted nuclear tests. Okay. And finally, in response to this nuclear tests, Nuclear Supplier Group with a membership of 48 countries was set up. Okay. Now, India is not a signatory. India is not a signatory to this. India has not signed the Nuclear Supplier Group. But its main objective is to prevent a nuclear proliferation. Means nuclear weapons should not further expand. ज़्यादा बढ़ने नहीं चाहिए. ठीक है. Proliferation means increase या enhance. तो increase नहीं होने चाहिए, enhance नहीं होगे. तो nuclear proliferation को क्या करना है? Prevent करना है. इसलिए nuclear या nuclear energy से related जितने भी exports है, उनको ये regulate करता है Nuclear Supplier Group. हालांकि इंडिया इसका member नहीं है. China is consistently blocking India's membership. Also, India has also said that this Nuclear Supplier Group is basically discriminatory. It discriminates between those countries which are having nuclear weapons or which are not having nuclear weapons. Okay. Then there are two types of states. Those states which have nuclear weapons, they are called as NWS and non-nuclear weapon states. Non-nuclear weapon states. Nuclear weapon states, non-nuclear weapon states. Now, India has its own nuclear doctrine, which is the policy of no first use. Policy of no first use. No first use policy of India for nuclear weapon states. Those states which have nuclear weapons, we have the policy of no first use. Means we will not use the nuclear weapon first. But if somebody uses, we will retaliate. And for non-nuclear weapon states, we have the policy of no use. We have the policy of no use. Means we will never use nuclear weapon for those states or against those states which do not have nuclear weapons. Okay. Now, China says that those countries which have not signed the Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT. What is Nuclear Non-Proliferation Treaty? This treaty was much earlier than the India's nuclear test. It is established, it was signed in 1970. The Non-Proliferation Treaty was signed in 1970. And what was its objective? Its objective was the same objective, to prevent the spread of nuclear weapons and to promote disarmament. What do you mean by disarmament? Disarmament means those who have already nuclear weapons, they must disarm themselves. Disarmament must be promoted and proliferation must be stopped. Nuclear proliferation must be stopped. It is also called non-proliferation. Okay. So India, I told you already, so many countries like Israel, Pakistan, North Korea, South Sudan, they are not signatories to the non-proliferation treaty as well. Okay. India is also not a member of Nuclear Supplier Group as well. One reason that India is not a member of Nuclear Supplier Group is that it has not signed the Nuclear Non-Proliferation Treaty. Get the point? So these are the basics which you must understand. In light of this, you must understand that India's nuclear regime is already much controlled under the doctrine of no first use as well as no use for the non-nuclear weapon states. But still, we want renewable energy sources in our country. For that matter, we want to enhance competition in the nuclear sector. That's why we want to bring in private sectors into the, we want to bring in private sector participation in nuclear sector also. Okay. Moreover, there is also one more discussion that the bill is basically coming in today's arena because now the scenario has changed. Okay. So scenario has changed to the extent that majority of the countries are pushing towards renewable sources of energy. Moreover, we have basically only kept this sector reserved for the government due to the security concerns associated with it. But now we are bringing in the liability clause, although the opposition says that the liability clause is also very much diluted. Why have you kept the liability at only 3,000 crores? Now, after understanding the basics, you go through this article, you will find it wonderfully interesting. Okay. So, the next article is Rajya Sabha passes a bill for 100% FDI in insurance sector. I have already told you that currently we have 74% FDI allowed, foreign direct investment. Means foreign investors can directly invest, open their branches of their companies or just open a separate company. They get regulatory powers
at their own and run insurance business in India. Now we have decided to go for 100% foreign direct investment. This bill has been passed in the Rajya Sabha also. Okay, it is called as Sabka Bima Sabki Raksha Bill. Okay, Sabka Bima Sabki Raksha Bill. Amending insurance laws. Amendment to insurance laws. कल की वीडियो में अगर आप देखेंगे, if you see yesterday's current affairs, I have discussed about laws governing insurance sector in India. Like I have discussed Life Insurance Act, I have discussed General Insurance Act, then I have discussed the Insurance Regulatory Development Authority of India Act 1999. Okay, now what is the main purpose of this bill? This bill says that we will allow 100% FDI in insurance sector. Now, why this bill? Finance Minister justifies this bill by saying that due to FDI, foreign players will enter the market. Foreign players will come into the market and that will enhance competition. Okay, that will enhance competition. And when there is competition, there will be reduction in premium. Reduction in premium for people, and there will be diversification of services and products. Okay. Now, opposition says that insurance agency will ask you for Aadhaar, will ask you for PAN card. So there is huge threat to privacy. Major concern that has been highlighted that may threat the privacy because foreign entities will take your PAN card, will take your Aadhaar card and other details. But foreign companies as well as domestic companies, both are asking for this. So if the threat is from foreign companies, the threat may be from domestic companies also. Okay, so this is also one more area which has been criticized, Okay, now also there has been a question that there is no responsibility clause, but finance minister says that they will have equal responsibility like the domestic insurers. We are not letting the foreign insurance players to get out of the responsibility clause. Okay, so this is all which has been discussed in the article. Okay, threats I have also told you that these are basically now one more thing that has been put as a criticism, that it will be a sort of profit extraction. Means profit will be extracted from domestic companies by the foreign companies. Profit extraction by foreign companies. But finance minister says that profit may also get enhanced due to enhanced competition. And at the end of the day, it will enhance ease of the doing business as well as ease of the life of the people. This is what we focus. The finance minister says that we want to enhance ease of life plus ease of doing business. Means we want to simplify the business environment so that we can make our insurance sector globally competitive. Get the point? So this is another article. Very interesting. Read it. You will find it very interesting. Next is change for the worse. Means if you are changing the name, what is the name? Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. Now it is being changed to Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Bill of 2025. Okay, all the features I have discussed कि इसमें 125 डेज का एक गारंटी है, और आज का आर्टिकल क्रिटिसाइज ये करता है कि 125 डेज देने की जरूरत भी क्या है, क्योंकि ये पाया जा रहा है कि विकसित भारत ग्रामीण का जो स्कीम है सिर्फ 9.5% हाउस होल्ड जो है वो 100 डेज का फायदा भी ले पाते हैं, वरना उससे भी कम ही ले रहे हैं. ओनली 9.5% हाउस होल्ड्स यूज 100 डेज. तो आप ज्यादा बढ़ा किस लिए रहे हो जब सिर्फ इतने ही पहले 100 डेज भी पूरा यूज नहीं कर रहे लोग, तो ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है. प्लस दूसरा 90% बेनिफिशियरीज जो हैं जैसे साउदर्न स्टेट्स में है, साउथ में, वो वुमेन है. ठीक है, तो
अगर आप इसका बेनिफिशियरी रेशियो देखोगे तो वुमेन का बेनिफिशियरी जो है रेट जो है वो साउथ इंडियन स्टेट्स में ज्यादा है, ठीक है, और वहां पे भी 100 डेज कोई यूज नहीं कर रहा, तो 125 डेज यूज करने बनाने की जरूरत नहीं थी। टू मेक द बिल अट्रैक्टिव यू हैव एनहांस द डेज, दिस इज व्हाट क्रिटिक्स आर ओपिनिंग। द अनदर ओपिनियन इज दैट already 90:10 was the ratio for center and states. Center was contributing 90% and states were contributing 10%, and that was a flexible budget. So therefore it was a demand driven scheme. Means जैसा जैसा डिमांड होगा बजट बढ़ाया भी जा सकता था। अब आपने बता दिया कि इसमें फंडिंग जो होगी वो होगी 60% बाय स्टेट, 40% बाय 60-40, 60 बाय सेंटर एंड 40% बाय स्टेट्स। तो आपने और फंड जो है वो भी क्या कर दिया, आपने फिक्स्ड कर दिया। तो फिक्स्ड फंड के साथ आपने इसको आप क्या कर दिया, रादर देन डिमांड ड्रिवन, ये अब आपने बना दिया एक सप्लाई ड्रिवन स्कीम। ये आपने क्या कर दिया, एक सप्लाई ड्रिवन स्कीम बना दिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो पहले वाला लॉ है, जो एमजी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, वो क्या था, दैट वाज अ बॉटम अप अप्रोच, दैट वाज अ बॉटम अप अप्रोच। इसका डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क था, ये ग्रॉस रूट से कनेक्टेड था, और आपने अब इसको कन्वर्ट कर दिया टॉप डाउन मॉडल। किसमें कर दिया, टॉप डाउन मॉडल, जो कि बॉटम अप अप्रोच जो है ये अलाइन होती है गांधी की फिलॉसफी ऑफ ग्राम स्वराज से, ठीक है। तो ये ग्राम स्वराज वाला कॉन्सेप्ट भी आपने यहां पे डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। और फर्दर क्रिटिसिज्म जो है इसमें, वो क्रिटिसिज्म ये है कि आपने इतनी दफा वर्ड गारंटी तो यूज कर दिया है इस एक्ट में 92 टाइम्स। महुआ मोइत्रा ने कैलकुलेट भी किया कि 92 टाइम्स आपने वर्ड गारंटी यूज करा इस आर्टिकल में, लेकिन 92 टाइम्स आपने वर्ड यूज कर दिया, लेकिन एक्चुअल में इट इज ए गारंटी ऑफ नथिंग। पहले कम से कम गारंटीड था 100 दिन का जॉब मिलेगा, पैसे और जरूरत पड़ेगी मिलेंगे, स्टेट्स के ऊपर बर्डन नहीं था, ठीक है। ऑलरेडी अगर देखोगे स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी क्या है, हाई। अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट्स टू मीट इट्स डेवलपमेंटल नीड्स, वो ऑलरेडी हाई है। तो आपने ओवर बर्डन कर दिया नरेगा का ये बिल जो है आप रिपील कर रहे हैं, तो इससे स्टेट्स का बर्डन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और फर्दर डेफिसिट बढ़ जाएगा। ये सारे क्रिटिसिज्म है। एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करो कि जब एक आर्टिकल आता है, मैं पहले दिन उसका प्रोविजंस बताता हूं, अगले 2-3 दिन तक उसके क्रिटिसिज्म फीचर सब डिस्कस हो जाते हैं। तो इसका मतलब न्यूज़पेपर का एक ट्रेंड है, एक आर्टिकल जब आता है वो 4-5 दिन तक कंटिन्यूअसली न्यूज में आता है, तो उसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज या रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज जितनी भी है वो सारी डिस्कस हो जाती है। तो अगर आप कंटिन्यूटी में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और कंटिन्यूटी में वीडियोस देखते हैं, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि उससे आपका नॉलेज बेस बहुत ही साउंड हो जाएगा। मतलब 4 दिन से मैं अब ये नरेगा के ऊपर जो बिल है इसको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अब जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऑलमोस्ट ये याद भी हो चुका होगा कि इसमें क्या क्या क्रिटिसिज्म्स हैं और क्या क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। आज ज्यादातर डिबेट जो है वो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये एक डिबेट था, पेज नंबर 10 या 11 पे है ये, तो इसको थोड़ा सा थॉरोली पढ़ो, लेकिन पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए, समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज अरावली रेंज टू बी प्रोटेक्टेड, और अरावली रेंज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों है, ठीक है। सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि अरावली रेंज जो है वो हमारा एक ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। यहां पे मैं इसके फीचर्स भी लिख रहा हूं साथ साथ में। ये हमारी एक ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस 4 रीजन्स जो है ये स्प्रेड होती है, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात एंड राजस्थान। इन 4 स्टेट्स का कुछ कुछ एरिया जो है इसके अंदर जो है वो कवर होता है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताऊं मैप पे, ठीक है, अगर आप यहां से देखेंगे तो ये है आपका अरावली रेंजेस, ठीक है। यहां से देखिए आप, ये जो रेड से मार्क्ड है ये सारा एरिया, ये आपका अरावली रेंजेस, अरावली माउंटेन रेंजेस, काफी माउंटेन रेंजेस है इसमें, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, कितने मीटर तक आप इसको माउंटेन मानते हो, प्लेन मानते हो, वैली मानते हो। तो यहां पे जो है इशू जो है वो मेनली माइनिंग को रेगुलेट करने का इशू है, कि माइनिंग को कैसे रेगुलेट किया जाए और इस अरावली रेंजेस को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। देखिए आप, ये न्यू दिल्ली को टचिंग है यहां से, ठीक है। ये राजस्थान, जयपुर, अजमेर, ये वाला एरिया, जोधपुर के बिल्कुल
विसिनिटी में आ जाती है, उदयपुर राजस्थान में, ठीक है, माउंट आबू, ठीक है, देन गुजरात बॉर्डर्स को भी यहाँ से टच करती है, ठीक है। तो ये सारा एरिया और कुछ पार्ट जो है वो हरियाणा का भी जो है इससे प्रोटेक्ट रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। अगर मैप पे दिखाना हो तो ये देखो, ये है अरावली रेंज आपकी, ठीक है। बाकी ये वाली रेंजेस जो है दीज आर विंध्यास, दीज आर सतपुरा रेंजेस, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स क्यों हैं ये ज्योग्राफी में आप बेसिक रीजन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कार्डमम हिल्स नीचे साउथ इंडिया में, ठीक है, नीलगिरी हिल्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये माउंटेन रेंजेस जो है मैप को, जब भी कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आए और कोई टर्म आए, उसका सबसे पहले आप मैप में लोकेट कर लो तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपकी अरावली रेंजेस, ठीक है। और बढ़ा करके अगर आप देखोगे तो इस तरह से स्प्रेड होती है अक्रॉस द स्टेट्स, ठीक है। अब इस अरावली का हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। अरावली माउंटेन रेंजेस मैंने कहा ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है हमारी, ठीक है। और इन अरावली माउंटेन रेंजेस का हमारा जो है बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है। कम से कम इसको बोला जाता है इट रेंजेस टू बिलियन ईयर ओल्ड माउंटेन रेंजेस हैं ये, ठीक है। और ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल बैरियर है, ये एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल बैरियर है जो प्रोटेक्ट करती है डेजर्टिफिकेशन को। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, किसी एक लैंड का डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, ड्यू टू वेरियस क्लाइमेटिक एंड अदर फिनोमेनास, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन को प्रोटेक्ट करती है ये, ठीक है। कौन से एरियाज को डेजर्टिफिकेशन से प्रिवेंट करती है, डेजर्टिफिकेशन ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन, इंडो गंगेटिक प्लेन का डेजर्टिफिकेशन पूरी तरह से प्रिवेंट करती है अरावली रेंजेस। और इसमें काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, वेरियस स्पीशीज आर को एग्जिस्टिंग इन अरावली माउंटेन रेंजेस, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी को भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद इसके अलावा क्या इसका क्या क्या फायदा है, ठीक है। और ये क्लाइमेट स्टेबिलिटी भी इंश्योर करती है, ठीक है, इन द रीजन। क्लाइमेट स्टेबिलिटी, स्टेबिलाईजेशन ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट स्टेबिलिटी में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, स्टेबिलाईजेशन ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। और कई सारे रिवर्स जो अरावली माउंटेन रेंजेस से निकलते हैं, उनका इट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिवर्स। जैसे मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, एक रिवर है जिसका नाम है साबरमती रिवर, देन लूनी रिवर, ठीक है। साबरमती रिवर हो गया, लूनी रिवर हो गया, ठीक है, और चंबल रिवर है इसमें, ठीक है। तो इन रिवर्स के लिए रिच सोर्स ऑफ वाटर भी है अरावली माउंटेन रेंजेस, ठीक है। जस्ट पहले इंपॉर्टेंस में डिस्कस कर रहा हूं। अब अगर मिनरल्स की बात करें, ठीक है, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो हैं अरावली माउंटेन रेंजेस से हमें एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब अगर ये इतने सारे मिनरल्स या स्टोन्स, ठीक है, और कई कई जगह से तो कॉपर, जिंक, गोल्ड, टंगस्टन, ये सारी चीजें जो है एक्सट्रैक्शन, इतने सारे मिनरल्स, इतने सारे स्टोन्स इसमें जो है हमारे पास, ये इनका रिच सोर्स है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो सोर्स जितना रिच होता है वो उतना ही वल्नरेबल होता है एक्सट्रैक्शन एंड इलीगल माइनिंग के लिए। तो इसलिए इसको जो है ये बहुत हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो कई सारे माइनिंग इस एरिया में हुआ है और बहुत सारी क्वेरिंग हुई है पिछले 4-5 डेकेड्स में, ठीक है। इसलिए इसको प्रिवेंट करना जरूरी है, ठीक है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 1990s से इसको प्रोटेक्ट करने का अभियान जो है वो स्टार्ट किया। कहां से? 1990s से इसको प्रोटेक्ट करने का अभियान शुरू किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था कि उसमें 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके एक टोटल बैन लगा दिया माइनिंग एक्टिविटीज पे, जब तक ना हम अरावलीज को प्रॉपरली डिफाइन कर पाए कि माउंटेन्स कौन से हैं, प्रोटेक्शन कहां है, एक्टिविटी को प्रॉपरली रेगुलेट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ग्लोबल लेवल पे हमारे पास कुछ कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ऐसी जैसी कन्वेंशन है, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, फिर सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी के लिए हमें चाहिए माउंटेन्स का प्रोटेक्शन करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया किसके ऊपर? माइनिंग के ऊपर। कहां कहां? फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात वगैरह, ये सारे एरियाज में जो अरावलीज के एडजॉइनिंग थे या अरावलीज के इन्फ्लुएंस में थे, ठीक है। उसके बाद मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बैन कर दिया अरावलीज को, क्या करना, अरावलीज में माइनिंग करना फिर से बैन कर दिया और फ्रेश लाइसेंसेस जो है वो इशू करना बंद कर दिया अरावली के एडजॉइनिंग रीजन में, ठीक है। फिर सेंटर ने 2025 में क्या कहा कि अरावली जो है, अरावली
को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया 2025 में, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट द अरावली रेंजेस, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ओके, प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट अरावली रेंजेस, ओके, ठीक है। उसके बाद एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमीशन बिठाया गया था 2024 में ही, ठीक है, 2024 में सेंट्रल एम्पावर्ड कमीशन बिठाया गया, सेंट्रल एम्पावर्ड कमीशन, ठीक है। इस कमीशन को स्पेशल मैंडेट दिया गया कि आप अरावलीज को स्टडी करके प्रॉपर उसके ऊपर रिकमेंडेशन दे दो, ठीक है। अक्टूबर में इस सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, ठीक है, और उसने क्या कहा, एक जो भी माउंटेन रेंज है, ठीक है, मैं अगले पेज पे बताऊंगा, इसकी रिकमेंडेशन थी कि 100 मीटर्स हाइट से जो भी है ज्यादा वो माउंटेन रेंज है, ठीक है। क्या कहा इसने कि ओनली हिल्स अबव 100 मीटर्स वुड मेक द कट, ठीक है। 100 मीटर्स जो है, 100 मीटर्स से ऊपर जो है, जो भी हिल्स हैं उनको कट पॉइंट बनाओ, उससे ऊपर जो है प्रिवेंशन करो, ठीक है। अब बिलो 100 मीटर जो है वहां पे आप माइनिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक एमिकस क्यूरी और न्यूट्रल पर्सन बिठाया था, के परमेश्वर, ठीक है। उसने कहा कि यार ये तो बड़ा वेग है, 100 मीटर से नीचे पूरा माइनिंग कर दोगे। लेकिन इससे पहले भी हमारे पास एक और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो है क्राइटेरिया था। उन्होंने क्या कहा था कि उसका जो क्राइटेरिया था, फॉरेस्ट सर्वे का ऑफ इंडिया का क्राइटेरिया था कि स्लोप जहां पे 3 डिग्री से ज्यादा हो, नंबर 1। नंबर 2 उसने कहा कि फुट हिल बफर, जब जहां पे हिल खत्म हो, ठीक है। देखो मैं यहां पे बताता हूं, ठीक है। उन्होंने कहा था कि अगर ग्रेटर देन 3 डिग्री क्या हो, स्लोप हो, प्लस जहां पे मान लीजिए ये स्लोप खत्म हुआ, इसके आगे 500 मीटर्स तक एक बफर, ठीक है, 500 मीटर तक का बफर। और उसके अलावा क्या कहा था, उसके बाद 2 हिल्स के बीच का स्पेस, एक हिल ऐसा है, ऐसे है, इसके बीच का स्पेस, ये सारा जो है प्रोटेक्टेड एरिया था। ये फॉरेस्ट सर्वे का डेफिनेशन था, लेकिन इसको खत्म कर दिया। अब सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने क्या कहा कि 100 मीटर से अबव जो भी हिल्स हैं उसमें आप कोई भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो प्योरली रिस्ट्रिक्टेड होगा। लेकिन उससे नीचे जो है आप ये माइनिंग एक्टिविटीज कर सकते हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की बाकी डायरेक्शन क्या है कि एक मैनेजमेंट प्लान बनाओ सस्टेनेबल माइनिंग के लिए, और पूरे अरावली रेंज को जो है उस मैनेजमेंट प्लान के थ्रू मैपिंग कराओ। सेंसिटिव हैबिटेट्स देखो, कहां पे बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज के हैबिटेट्स हैं, उनको मैपिंग करो, और क्यूमुलेटिव इकोलॉजिकल इंपैक्ट असेसमेंट करो कि कितना इकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा इन रेंजेस की माइनिंग की वजह से। उस बेसिस पे एक कैलिब्रेटेड अप्रोच फॉर्मुलेट करो, और उस अप्रोच के साथ जो है माइनिंग जो है वो बड़े ही टाइट नॉर्म्स के साथ माइनिंग जो है वो अलाउ करो, ठीक है। अब उसने ये भी कहा कि टोटल बैन लगाने में बुराई नहीं है, लेकिन टोटल बैन से क्या होता है, फिर इलीगल एक्सट्रैक्शन जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। वंडरफुल आर्टिकल, गो फॉर इट, गेट द पॉइंट, इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी एज वेल एज करंट अफेयर्स, ओके। माइक्रो फाइनेंस लोन्स, ठीक है, या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, हमारी कंट्री में जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, लोन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना कि लोन लेने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि आप लोगों को लोन चाहिए नहीं, ठीक है। आप लोन लेकर बैंक पे एहसान कर रहे हो, क्यों? अगर लोन मिलता नीडी पीपल को तो सबसे ज्यादा लोन गरीब लोग लेते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अमीर लोगों को लोन मिल जाता है इजीली। डॉक्यूमेंटेशन, टैक्स रिपोर्ट्स, इनकम आईटीआर सब कुछ होता है उनके पास, ठीक है। लेकिन गरीब को, लो इनकम ग्रुप को लोन देने के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो का मतलब होता है वो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो छोटे वर्ग को लोन्स दे दें, ठीक है। छोटा वर्ग मतलब लो इनकम ग्रुप्स, लो इनकम ग्रुप्स, प्लस दूसरा वो लोन किनको देते हैं, रूरल पुअर्स को, रूरल पुअर्स, वुमेन। लेकिन अब यही लोग जो है बाद में लोन वापस नहीं कर पाते, इसलिए इनमें परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही पुअर थी, ठीक है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हो रही है, परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हो रही है, और स्ट्रेस जो है माइक्रो फाइनेंस लोन्स का वो रिड्यूस हो रहा है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस मतलब जब आप ईएमआईज डिफॉल्ट विटनेस करते हैं, जब ईएमआईज जो है लोन्स के ऊपर ड्यू डेट से क्रॉस हो जाती है तो स्ट्रेस, दे आर कॉल्ड स्ट्रेस लोन्स, ओके। अब ये माइक्रो फाइनेंस लोन्स का क्वालिटी के ऊपर रिपोर्ट कौन देता है? ये एक इंस्टीट्यूशन देता है जिसका नाम है साधन,
जिसका नाम क्या है, साधन। ठीक है, ये सेल्फ रेगुलेटरी एक इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई ने भी रिकॉग्नाइज किया है। ये सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है, कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन का काम करता है, लोगों के बीच में अवेयरनेस का काम करता है, रिकवरी ऑफ लोन्स की हेल्प करता है, और रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है माइक्रो फाइनेंस के ऊपर, डेटा के ऊपर। ठीक है, इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज रखना है ध्यान में, देयर इज अ टर्म कॉल्ड पार। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज पार। व्हाट डू यू मीन बाय पार? पार का क्या मतलब है? पार का मतलब होता है बेसिकली जो एसेट्स हैं, ठीक है, जो भी एसेट्स हैं वो अगर उनकी क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाए, क्या हो जाए? अगर उनकी क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाए। ठीक है, क्वालिटी डिटीरियोरेट कैसे हो जाती है? मान लीजिए लोन ड्यू हो गया, आपने लोन नहीं दिया, वापस नहीं दिया, आपने जो है ये नहीं दिया, ईएमआई नहीं दिया। ठीक है, तो इसका मतलब लोन का क्वालिटी क्या हो गया? डिटीरियोरेट हो गया। अब ये लोन कितने दिन से ज्यादा ओवरड्यू हो गया? अगर 30 दिन से ज्यादा हो गया तो पार 30+ का एक बकेट है। इसमें कई सारे लोन्स है, 30 दिन से ज्यादा ईएमआई ड्यू हो गया। पार 60+, 60 दिन से ज्यादा ईएमआई ड्यू हो गया। पार 90+, पार 90+, 90 डेज से ज्यादा ईएमआई ड्यू हो गया। और पार 180+, पार 180+, 180 से ज्यादा लोन ड्यू हो गया। इसमें इन 3 बकेट्स के लोन्स में इंप्रूवमेंट आया है कि इन इतने ड्यू जो लोन थे वो धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो गए। ये वाले लोन्स अभी भी रिकवर नहीं हो रहे, और इसका उन्होंने बताया रीजन क्या है कि ये कोविड के टाइम के लोन्स हैं, अभी तक जो है वो रिकवर नहीं हो पा रहे। ठीक है, यहां पे आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो लोन्स है जिनका कंसिस्टेंटली जो है ये परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट हो रहा है, क्या डिटीरियोरेट हो रहा है? परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट हो रहा है। वो सिर्फ कौन से वाले हैं? पार 180+, जहां पे मैंने बताया पार 30, पार 60, पार 90, इन सबों पे इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं पार 30 का एग्जांपल लेता हूं कि अगर आप देखोगे 2024 में तो इट वाज 7.5%, 15%, मतलब इतने लोन्स जो है वो इनके ऊपर 30 दिन से ज्यादा ईएमआई ड्यू हो चुका था। लेकिन अगर आप 2025 में देखें आज की डेट में, तो इनके ऊपर सिर्फ इतने लोन्स बच गए हैं 5.27%, जिनके ऊपर अभी भी ईएमआईज ड्यू हैं। सो दिस इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, द टर्म पार स्टैंड्स फॉर पोर्टफोलियो एट रिस्क, मींस कितने रिस्क पे चला गया है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मींस जो लोन या जो फाइनेंस दिया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने, पोर्टफोलियो एट रिस्क। ठीक है, तो जो 30 डेज और 60 डेज और 90 डेज से ज्यादा 90 डेज से कम वाले रिस्क वाले लोन्स थे वो धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो गए। इसका मतलब ये एक साइन है गुड हेल्थ ऑफ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। लेकिन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि ये बहुत हैवी इंटरेस्ट रेट्स पर लोन देते हैं, लोन का ईएमआई और लोन रीपेमेंट जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स पे होता है, 15-15 दिन के बाद ईएमआई पे करनी होगी। अच्छा, इंटरेस्ट रेट ऐसे दिखाएंगे पर एनम, बोलेंगे 5% पर वो मंथली होगा, या 2% पर वो क्वार्टरली होगा, सॉरी सेमी मंथली होगा, 15 दिन के ऊपर होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से जब क्यूमुलेटिव देखेंगे तो कई सारे उनको एक्यूज किया जाता है कि 28% तक भी कई सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने इंटरेस्ट चार्ज किया लोगों से। ठीक है, उसके बाद आरबीआई ने इसके ऊपर कैप भी लगाया, बट वो बेसिक इकोनॉमिक्स का पार्ट है तो वो थोड़ा सा देख लेंगे बाद में। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें जरूरी है, माइक्रो फाइनेंस का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए और ये साधन का पता होना चाहिए कौन सा इंस्टीट्यूशन है। इसके लिए बेसिक्स में हम आते हैं। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है मैंने आपको बताया, वो बैंकिंग सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं किनको? लो इनकम इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को जो टिपिकली एक्सक्लूडेड होते हैं ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से। तो इसका मतलब, इसका पर्पस क्या है? पहला पर्पस है इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि वो लोग भी फाइनेंशियल सेक्टर में सर्विसेज ले पाएं जो लोग सर्विसेज नहीं ले पाते। मोस्टली वुमेन्स के लिए भी इसमें सही क्राइटेरियाज हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट भी इसका एक पर्पस है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी जो है माइक्रो फाइनेंस लोन्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये साधन का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर नवांध्रा डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एक्शन। सोसाइटी फॉर नवांध्रा डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एक्शन, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन ये आरबीआई से रिकॉग्नाइज्ड है, और ये बैंक्स को क्या करता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना, रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग को प्रमोट करना, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनके बीच कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, और एथिकल प्रैक्टिसेस फॉर लो इनकम कम्युनिटीज। ठीक है, लो इनकम कम्युनिटीज के लिए क्यों? क्योंकि आंध्रा में ही कई सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पे ये इल्जाम लगा कि उन्होंने लोन्स दिए लोगों को, और जब लोन्स रिकवर नहीं कर पाए, लोग लोन्स वापस नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या कर दिया? बाउंसर्स भेज दिया, ऐसा जो बोरोवर से उनको पिटवा विटवा दिया। ठीक है, 2011-12 का कई ये मैंने केस पढ़ा है। ठीक है, सो
दिस इज ऑल द न्यूज अबाउट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जो परफॉर्मेंस है अभी वो इंप्रूव हो रही है, पर सिर्फ कौन सी बकेट्स में, पार 30 प्लस, पार 60 प्लस और पार 90 प्लस। पार 180 प्लस में अभी भी जो है वो परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती है, ठीक है। ये कभी कभी सवाल सीधा पूछेगा कि द टर्म पार 180 प्लस रेफर्स टू, ये मींस पोर्टफोलियो एट रिस्क, वो लोन जो 180 प्लस डेज से ओवरड्यू हो गया, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस लोन। पोर्टफोलियो एट रिस्क पार 90 प्लस क्या होता है, 90 डेज से ज्यादा इसका ईएमआई ड्यू हो गया। पोर्टफोलियो एट रिस्क 60 प्लस, 60 डेज से ज्यादा इसका ईएमआई ड्यू हो गया। और पोर्टफोलियो एट रिस्क 30 प्लस, इसका क्या हो गया, इसका जो है ओवरड्यू हो गया 30 डेज से ज्यादा। अच्छा, कभी कभी अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा जो है आज की डेट में रिस्क में पोर्टफोलियो 5.27% जो है वो पार 30 है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे पार 60, पार 60 कितना है, 4.28%। और पार 90 कितना, इसी तरह पार 90 का भी एक इंप्रूवमेंट फिगर है, कहीं इसी में है, मुझे वो नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, हाँ सॉरी, पार 90 जो है वो कितना रिस्क में बच गया, 3.2%, 27%। और दिस इज पार 90 प्लस, ओके। पार 60 प्लस कितना हो गया है, 4.28%। और पार 30 प्लस कितना हो गया, 5.27%। तो इस समय हाईएस्ट जो है वो पार 180 प्लस है हाईएस्ट, उसके बाद सेकंड ये पार 30 प्लस, पार 60 प्लस एंड पार 90 प्लस, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टिपिकल हो जाते हैं, और स्टूडेंट सोचता है ये क्वेश्चन जो है कहां से पूछा गया, कोई आइडिया नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। हाँ, तो दिस इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द करंट अफेयर्स सेक्शन टुडे। टुमारो आई विल कम अप विद सम मोर करंट अफेयर्स, बट प्लीज अंडरस्टैंड, मेंटेनिंग कंटिन्यूटी इज द ओनली की टू सक्सेस इन करंट अफेयर्स, बिकॉज इफ यू आर कॉन्टिन्यूअस then only you will understand what actually is going on. पहले 2-4 दिन कुछ नहीं समझ में आता, ठीक है। Also drop your comments in the comment box, which I read very sincerely, and I try to respond to your queries also on the next day, ठीक है। Thank you so much for joining me.